टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। તો પહલગામ આતંકી હુમલા પછી પ્રથમવાર કેબિનેટની બેઠક મળી। પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક મળશે। કેબિનેટ પહેલા સીસીએસ અને સીસીસીએ સમિતિની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી। દેશની સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અને ચૂંટણી વ્યૂહરચના મુદ્દે ચર્ચા કેબિનેટની બેઠકમાં થશે। છેલ્લી બેઠક છે, અંતિમ બેઠક એ કેબિનેટની હશે, જેમાં હુમલાની પણ ચર્ચા થઈ શકે છે। તો પહલગામ આતંકી હુમલા બાદ પહેલી કેબિનેટની બેઠક મળી છે અને આ જે બેઠક છે એમાં અનેક મુદ્દે ચર્ચાઓ થઈ શકે છે, જેમાં પહલગામ આતંકી હુમલો મુખ્ય મુદ્દો હોઈ શકે છે, કારણ કે અંતિમ બેઠક જે આજની છે એ કેબિનેટની બેઠક છે। પહલગામ આતંકી હુમલામાં વધુ એક આતંકીનું નામ સામે આવ્યું છે। હુમલામાં આતંકી ફારૂક અહમદની મહત્વની ભૂમિકા। આતંકી ફારૂક અહમદ લશ્કરનો ટોપ કમાન્ડર છે। આતંકી ફારૂક અહમદ પીઓકેમાં છુપાયો છે। આતંકી ફારૂક અહમદ હમલા માટે OGWનું નેટવર્ક એણે બનાવ્યું હતું। આતંકી ફારૂક અહમદના ઘરનું થોડા દિવસ પહેલાં ડિમોલેશન થયું છે। આતંકી ફારૂક અહમદ કુપવાડાનો રહેવાસી છે। તો આજ મુદ્દે આપણી જોડે ચર્ચા કરવા માટે મહેમાન જોડાયા છે દિનેશ પટેલ, કે જેઓ પ્રમુખ છે પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદના। આપનું સ્વાગત છે સર। સૌથી પહેલો સવાલ મારો એ છે કે જે આ બેઠક છેલ્લા 2 દિવસમાં કરવામાં આવી, એ ગઈકાલે સીસીએસની બેઠક મળી, આજે સીસીએસની બેઠક મળી। ગઈકાલે રાજનાથસિંહ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા, ત્રણેય સેનાના પ્રમુખ ઉપસ્થિત હતા, NSA અજીત ડોભાલ હતા, અને આજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને રાજનાથસિંહ બેઠકમાં ઉપસ્થિત હતા। એટલે સતત બેઠકોનો દોર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે। એક વાત સ્પષ્ટ લાગી રહી છે કે આગળ કંઈક મોટું થવાનું છે। સર સર અવાજ આવી રહ્યો છે? દિનેશ સર અવાજ આવી રહ્યો છે? તો અત્યારે મહત્વની બેઠક જે છે એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। 20 મિનિટ સુધી સીસીએસની બેઠક ચાલી હતી, જે આજે અને ગઈકાલે પણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એટલે હવે એક વાત ક્લિયર છે, પાકિસ્તાનના જે નેતાઓ છે, જે ત્યાંનો મંત્રી છે, એણે ગઈકાલે રાત્રે 1:30 વાગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે ભારત ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે। એટલે પાકિસ્તાનમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે। પહલગામ હુમલાને લઈને ઘટના બાદ પાકિસ્તાનમાં રીતસરનો ફફડાટ ફેલાયો છે, કારણ કે ડિપ્લોમેટિક સ્ટેપ્સ તો ઇન્ડિયાએ પહેલાં જ લઈ લીધા, અને હવે અન્ય કઈ રીતે ઘેરી શકાય એને લઈને બેઠકો સતત કરવામાં આવી રહી છે। બીજી વાત એ કે હુમલામાં જે આતંકી હતો, અન્ય એક આતંકી ફારૂક, એની પણ ઓળખ થઈ ગઈ છે, અને એનું જે ઘર હતું એ થોડા દિવસો પહેલાં તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું, પણ એની મહત્વની ભૂમિકા હતી। આતંકી ફારૂક અહેમદ લશ્કરનો ટોપ કમાન્ડર હતો, અને આ તસવીર એની તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર। એટલે અત્યારે ઓલ ઓવર સ્થિતિની આપણે વાત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં સતત બેઠક કરવામાં આવી રહી છે, અને આગળની રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે। જે રીતે છૂટ આપવામાં આવી છે સેનાને કે જે કરવું હોય કરો, સમય નક્કી કરો, ટાર્ગેટ નક્કી કરો, સરકારને તમને સપોર્ટ છે, એ રીતે જોવા જઈએ તો હવે નજીકના સમયમાં કંઈક વધારે મોટા નિર્ણયો લેવાઈ શકે છે પાકિસ્તાનની વિરુદ્ધ। પાકિસ્તાનની સ્થિતિની વાત કરીએ તો પાકિસ્તાનમાં પહેલેથી જ ફાંફા છે, ખાવાના ફાંફા છે, અને એવી સ્થિતિમાં પણ પાકિસ્તાન સતત આરોપો લગાવી રહ્યું છે। બીજું એના નેતાઓ છે એ પણ સતત નિવેદનો આપી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં આતંકી હુમલા બાદ વિશ્વભરમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકો આ હુમલાને નિંદા કરી રહ્યા છે અને પાકિસ્તાન પર ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે। ત્યારે ગાંધીનગરમાં પણ સ્થાનિકોએ પહલગામ હુમલાને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, સાથે જ આતંકિસ્તાનની નિંદા પણ કરી। આતંકીઓને ઉછેરનાર પાકિસ્તાનને હજુ કડક કાર્યવાહી કરી જવાબ આપવામાં આવે તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। કાશ્મીરના પહેલગાંવની અંદર આતંકી હુમલામાં દેશના 28 જેટલા પર્યટકોના મોત નિપજ્યા હતા, ત્યારે સમગ્ર દેશની અંદર આ હુમલાને લઈને નિંદા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ગાંધીનગર વાસીઓ શું કહી રહ્યા છે આ હુમલાને લઈને, સરકાર દ્વારા જે પગલાં ભરવામાં આવે છે તે મામલે તેમની શું પ્રતિક્રિયા છે તેમની પાસે જાણીશું। જે રીતે આતંકી હુમલો થયો હતો, જે 28 જેટલા પર્યટકોના મોત નિપજ્યા હતા, આ ઘટનાને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને જે કેન્દ્ર સરકારે પગલાં જે ભર્યા છે એને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો?
આ એક દુઃખદ ઘટનાને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ અને આવી રીતે નિર્દોષ નાગરિકોનું નિર્મમ હત્યા કરવી એ ખરેખર કોઈ ધર્મ કે કોઈને લાગુ નથી પડતું, પણ આ કૃત્ય કરનારને કુદરત ભગવાન ક્યારેય માફ નહીં કરે. આ કૃત્ય કરનારને જે કોઈ પણ છે એના માટે સરકારે ખરેખર ખૂબ જ કડકમાં કડક પગલાં ભરવા જોઈએ અને એ કડક પગલાં જે કોઈ પણ સરકાર નક્કી કરશે એ કડક પગલાંમાં ગાંધીનગર જિલ્લાના સમગ્ર નાગરિકો એના માટે તૈયાર હશે અને જે કોઈ પણ અમારા શિરે જવાબદારી આવશે નિભાઈ અને આ કૃત્ય કરનારાઓને અમે કડકમાં કડક સજા કરીએ, સરકાર સજા કરે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ચોક્કસથી પરેશભાઈ, તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જે રીતે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય કરેલા છે પાકિસ્તાન હોય કે આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ હોય, એને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ખૂબ જ આ દુઃખદ ઘટનાની અંદર પહલગામની અંદર જે નાગરિક જે પોતે ફરવા માટે ગયેલા, પરંતુ એ પોતે જાણતા ન હતા કે આજે મારી પરિસ્થિતિનું સર્જન આવું થવાનું છે, પણ કુદરતી એક મોટી આપત્તિ આવી છે અને સરકાર પણ એના પડખે ઊભી છે. એટલે સરકારનું અમારું સર્વે નાગરિકોનું નિવેદન છે કે આવતા સમયની અંદર ચોક્કસ આના ઉપર સખતમાં સખત પગલાં ભરવામાં આવે અને આવા આતંકવાદને નાબૂદ કરવા માટે ખભેથી ખભો મિલાવીને તમામ ભારતના નાગરિકો એમની સાથે રહેશે. બેન, આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને હજુ સરકારે કેવા પગલાં ભરવા જોઈએ? એક માએ દીકરો ગુમાવ્યો હોય, એક પત્નીએ પતિ ગુમાવ્યો હોય, બાળકોએ પિતા ગુમાવ્યો હોય, તો એના સ્વજનોની જે પીડા હોય તો સ્વજન જ જાણે, પણ આ દરેક ભારતીય અનુભવે છે, દરેક નાગરિક અનુભવી શકે છે. તો દરેક નાગરિક વતી હું સરકારને વિનંતી કરું કે અતિશય કડકમાં કડક પગલાં, જે અત્યાર સુધીમાં એ લોકોને ખરેખર ખબર પડવી જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિનો જીવ કેટલો કિંમતી હોય છે, તો ખરેખર સરકાર જે પણ પગલાં લેશે એની સાથે અમારા નાગરિકો સાથે જોડાયેલા છે. સરકારે જે સિંધુ જળ સંધિ કરાર રદ કર્યો છે એને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? સરકારનો નિર્ણય કઈ રીતે જોવો છો? જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામની અંદર મા ભારતીના 26 સંતાનો પ્રવાસે ગયા હતા અને ત્યાં આતંકવાદીઓની ગોળીઓનો શિકાર બન્યા છે. એનું અમને ભારોભાર દુઃખ છે અને સરકાર આ બાબતે જે કંઈ પણ ગંભીર પગલાં લેશે એને અમારું અનુમોદન છે. સરકાર કંઈક આમાં સારું જ કરશે એવી અમને અપેક્ષા છે અને કડકમાં કડક પગલાં લેવાય એવી અમે ઈચ્છીએ છીએ. ચોક્કસથી અહીંયા અન્ય પણ મહિલાઓ છે, તેમની સાથે પણ સંવાદ કરીશું. બેન, શું કહેશો? જે રીતે આતંકવાદી કૃત્ય જે કર્યું છે, જે લોકો 28 લોકોના મોત નીપજ્યા છે, સરકારે પગલાં લીધા છે, કઈ રીતે આખી સમગ્ર ઘટનાને આપ જોયો છો? આપના વિચારો શું છે આ બાબતે? જી, હું જરૂર કહેવા માંગીશ કે જેમ બેને વાત કરી એમ દરેકે પોતાના સ્નેહીજનોને ગુમાવ્યા છે. ખૂબ દુઃખ થયું છે અને સરકાર પોતાનો કિંમતી સમય આને આપે અને જરૂરી પગલાં ભરે અને સખતમાં સખત કડક નિયમો લાગુ પાડે જરૂરી છે. ત્યારે સરકારે જે પગલાં ભરે છે એનાથી આપ સંતોષ છો કે હજુ આનાથી વધારે કડકાઈથી પગલાં ભરવાની જરૂર હતી? ના, જરૂરી છે, થોડા વધારે કડક પગલાં લેવા જોઈએ. કરશે જ, એને બક્ષશે નહીં. સરકાર યોગ્ય પગલાં જ ભરશે એટલો અમને સરકાર પાસે વિશ્વાસ છે. આગળ વાત કરવા માટે તો ચોક્કસથી અહીંયા આગળ ગાંધીનગર વાસીઓનું જે છે તે સ્પષ્ટપણે કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધી જે પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે તે યોગ્ય પગલાં છે, પરંતુ હજુ પણ સરકારે જે છે તે કડકાઈથી પગલાં ભરવા જોઈએ. ગાંધીનગર વાસીઓ સરકારના નિર્ણયની સાથે છે. સરકાર જે પણ પગલું ભરશે ગાંધીનગર વાસીઓ તેનો સહજતાથી સ્વીકાર કરશે. કેમેરામેન લાલા ભરવાડ સાથે મલ્હાર વોરા, ન્યૂઝ કેપિટલ, ગાંધીનગર. તો આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા આપણી જોડે લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ સિંહ જોડાયા છે. અમૃતલાલ સર, આપનું સ્વાગત છે. સર, મારો સૌથી પહેલો સવાલ એ છે કે જે રીતે હુમલો પહલગામમાં થયો અને ઇન્ડિયન આર્મીની હિસ્ટ્રી રહી છે, સરકારની હિસ્ટ્રી રહી છે, 11 દિવસ પછી આપણે ફાયર બેક કરીએ છીએ, મતલબ કે એને રિટાલિએટ કરીએ છીએ. આપણે 2001ની વાત કરીએ, સંસદમાં હુમલો થયો તો સંસદના 11 દિવસ પછી કાશ્મીર અને પંજાબમાં મોટી મિલિટરી એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ. 2016માં ઉરી હુમલો થયો, 11 દિવસ પછી આતંકી અડ્ડાઓમાં ભારતે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી. 2019માં પુલવામામાં હુમલો થયો, 11 દિવસ પછી બાલાકોટમાં ભારતે એર સ્ટ્રાઇક કરી. હવે આ જે પહલગામમાં હુમલો થયો છે, 11 દિવસ પછી શું બની શકે, મતલબ કે આ એક જે ભૂતકાળમાં થયેલી ઘટનાઓનું એનાલિસિસ છે, બની શકે કે નજીકના સમયમાં એક મોટો જવાબ પાકિસ્તાનને અને આતંકવાદીઓને મળી શકે છે? जी हिम, इस बार की जो घटना और विश्व का जो समर्थन भारत देश के साथ है उसको देखते हुए और हमारी नीतियों के मद्देनज़र रखते हुए इस बार का जो हमला है ये उग्रवादियों का को ख़त्म करने का हमला नहीं है,
ये हमला है उसको जड़ मूड़ से उखाड़ देने का, कि इस टेररिज्म को चलाने वाला जो देश है, जिसने 1989 में शुरू करके आज जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर एक स्वर्ग के समान था, एक स्विट्जरलैंड था, उसको आज जमींदोस्त कर दिया है, उनका बिजनेस पूरा ठप कर दिया है। तो ये 89 से लेकर के आज की डेट तक अगर मैं कहूँ तो हमारे कई निर्दोष जवान मारे गए हैं, कई निर्दोष सिविलियन मारे गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो वारदातें समय समय के अंतराल पर हो रही है और उस वारदात से भारत के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में एक प्रकार का डर फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डर उसके अंदर बैठ जाए। आमने सामने की लड़ाई, कन्वेंशनल वॉर, तो उसकी ताकत नहीं है कि भारत के साथ वो अटैक करके लड़ाई लड़ सके, वो उनके पास कोई तोड़ नहीं है। भारत की सेना को देख करके, उनकी सेना और भारत की थल सेना, उनकी नेवी और भारत की नेवी, उनका एयरफोर्स और भारत का एयरफोर्स, जमीन आसमान का अंतर है। और भारत की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी, भारत की आर्थिक स्थिति और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, भारत की सेना का मनोबल और पाकिस्तानी सेना का मनोबल, ये कंपैरिजन जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी सेना पूरी टूट चुकी है। लोगों के दिल में एक डर पैदा हो गया है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया मेरे सामने कि जब उड़ी अटैक हुआ था तो हमने 11वें दिन उसके घर में घुस करके मारे थे उग्रवादियों के स्लीपर सेल और उनके जो भी ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया था। जब पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था उस समय भी हमने उसके घर में घुस करके एयर स्ट्राइक करी थी और 300 जितने उग्रवादी को मार गिराया था। लेकिन इससे पहले मैंने अपने वक्तव्य में बताया था और प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं जरूर दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 35,000 रजिस्टर्ड मदरसा है, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड का कोई गिनती नहीं है। तो वहाँ जितने जो लोग हैं उनको मदरसा में माइंड वॉश किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप जो है काफिरों को मारोगे। उनके धर्म में, इस्लाम धर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म को मानना नहीं है। बाकी के जो भी धर्म वाले हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफिर है। तो काफिर को मारना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको 72 वूर्स मिलेंगे, आपको ये होगा वो होगा, न जाने क्या क्या उनके दिमाग में ये सब बिठा दिया जाता है। और इसके बाद हर साल एक एक मदरसा से एक एक आदमी को बुलाया जाता है और उसकी एक टीम को तैयार किया जाता है और वो जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्द फैलाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाना है, उनकी जीडीपी को डाउन करना है, घुसपैठ कराना है। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग यानी कि एलओसी के ऊपर फायर खोलते हैं, जिसके कारण ये लोग वहाँ से घुसने में या बॉर्डर पार करने के लिए उसको बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो 740 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, ये जो एलओसी है, इस एलओसी से कहीं से भी इन काफिरों को निकालने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जिसके कारण ये उग्रवाद पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि एक जड़ को काट देंगे तो दूसरी जड़ एकदम तैयार खड़ी रहती है। एक को मार दिया तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। तो ये जो है अभी उनको जड़ मुड़ से मारने के लिए इनको कौन खाना दे रहा है, उनको कौन शेल्टर दे रहा है, उनको कौन पैसा दे रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, जी इनको पकड़ना है। तो ये जो पता चल गया है कि टेररिज्म जो है वहाँ का आईएसआई जो एक संगठन है, वो संगठन उग्रवादियों को इकट्ठा करना, कहाँ भेजना, दुनिया के साथ
अभी उनके जो ख्वाजा साहब ने भी निवेदन दिया था इंग्लैंड और अमेरिका के सामने कि इतने सालों से हम आपको मदद कर रहे हैं, मदद सर। क्या कर रहे हैं, यही उग्रवादी मदद कर रहे थे। तो इसी प्रकार से एक उग्रवाद देश को एक झटका देने के लिए अभी जो एक्शन होने जा रहा है, हम वो बिल्कुल। 11 दिन इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आपने उड़ी अटैक हुआ तो 11 दिन के बाद भारत ने अटैक कर दिया था, पुलवामा अटैक हुआ तो 12वें दिन अटैक कर दिया था। अभी जो होने जा रहा है ये बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहुत जी बड़ा सर। होने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। युद्ध जब शुरू हो गया और छिड़ गया तो आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध वो सोच रहे थे कि हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, 10 दिन में जी। खत्म हो जाएगा, महीने में खत्म हो जाएगा, साल भर में खत्म हो जाएगा। जी। आज 3-3 साल हो चुके हैं। तो कोई भी चीज अगर लंबा चलेगा तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हथियार, आमिनेशन, रसद ले जाना है, सपोर्ट ले जाना है, आधुनिक हथियार को ले जाना है। बिल्कुल। और सर, चारधाम यात्रा और तो अमरनाथ यात्रा भी तमाम शुरू हो चीजों रही की है। एक प्रक्रिया है। जी हाँ, आज से अखात्रीज के दिन आज जो है ये यात्रा शुरू हो गई है। बिल्कुल। एंड 2 तारीख को ये बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी और ये जो है 4 धाम में से आज केदारनाथ शुरू हुए, बद्रीनाथ, इसके बाद चारों धाम की यात्रा जो है शुरू होकर के 2 अगस्त को कहीं जाकर के इनके कपाट बंद होंगे। 45 दिन लंबी चलने वाली यात्रा है। वो भी ये पहलगांव से आगे से जानी है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। बिल्कुल चप्पे चप्पे पर एडिशनल पीएसी की कंपनी लगी हुई है, सीआरपीएफ बटालियन लगी हुई है, आर्मी को भी टास्क दिया है, तो उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं जी। है। और उनको एज इट इज सारे लोग जो है उनका ध्यान अभी इस तरफ केंद्रित है। तो ये हमारी यात्रा सकुशल और सफलतापूर्वक पार होगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। બિલકુલ સર. દિનેશ પટેલ આપણી સાથે જોડાયા છે, જેઓ પ્રમુખ છે પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદના. દિનેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. દિનેશભાઈ, જે સીસીએસની બેઠક કરવામાં આવી છે છેલ્લા 2 દિવસમાં 2 બેઠક, ગઈકાલની બેઠકમાં સેનાના ત્રણેય જે છે એ પ્રમુખ જોડાયા હતા. રાજનાથ સિંહ ઉપસ્થિત હતા, રક્ષામંત્રી, અને NS અજીત ડોભાલ હતા. આજની બેઠક 20 મિનિટમાં પૂર્ણ થઈ છે, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ઉપસ્થિત હતા અને રાજનાથ સિંહ હતા. આ 2 બેઠક 2 દિવસમાં આ કેટલો મોટો સંકેત? કોઈ પણ આટલું મોટું ઓપરેશન જ્યારે ચાલુ કરવાનું છે ત્યારે પ્રોપર પ્લાનિંગ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે કહેવાય છે કે ઇફ યુ ફેલ ટુ પ્લાન યુ આર પ્લાનિંગ ટુ ફેલ. તમે આપણા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો ડિફરન્સ જુઓ કે ત્યાં આગળ બચાવની તૈયારી ચાલી રહી છે. ટેરરિસ્ટના કેમ્પમાંથી એમને ઉઠાવીને સેફ જગ્યા પર શિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. બંકરો સાફ કરીને બચાવ કેવી રીતે સૈનિકો બચશે તેની તૈયારી ચાલી રહી છે. આપણે ત્યાં એટેકની તૈયારી ચાલી રહી છે. This is the difference between the Pakistan forces and the defense service, Indian forces. આ ડિફરન્સમાં મોટી બેઠકો કરીને એક સિરિયસ પ્લાન એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે ભારતીય સરકાર અને ભારતીય સેના. તો એને માટે ડિટેલ પ્લાનિંગ થઈ ગઈ. જેટલી બેઠકો વધારે થાય છે ત્યાર પછીની બેઠકો શોર્ટ થાય છે. તો કમિંગ ટુ સમ કન્ક્લુઝન અને પ્રોપર પ્લાનિંગ કે આપણે કેવી રીતે એટેક કરવું ત્યાં સુધી લઈ જવાનું. જેવી રીતે મકવાણા સાહેબે કહ્યું કે યુદ્ધ ચાલુ થાય ને એ ચાલુ કરવું આપણા હાથમાં છે, પણ યુદ્ધને પૂરું કરવું પછી આપણા હાથમાં નથી રહેતું. એટલે યુદ્ધને આપણે અત્યાર સુધીના જેટલા બધા ઓપરેશન્સ આપણે કર્યા છે, ડિસિઝિવ ઓપરેશન કર્યા છે. ટેક ધ કેસ ઓફ 1965 વોર, તો આપણે યુદ્ધ અમુક ટાઈમની અંદર પૂરું કરી દીધું છે. ટેક ધ કેસ ઓફ કારગિલ વોર, તે આપણે 3 મહિનાની અંદર એને યુદ્ધ પૂરું કરી દીધું છે. ટેક ધ કેસ ઓફ યુરી એટેક ઓર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક, આ બધાની અંદર આપણે એક ડિસિઝિવ પ્લાન બનાવીએ છીએ. અને ટેક ધ કેસ ઓફ 1971 વોર, જેમાં તો હું પોતે પણ ત્યાં આગળ હતો બાંગ્લાદેશ બોર્ડર પર, એટલે પહેલેથી પ્લાનિંગ હતું કે 13 દિવસમાં આપણે યુદ્ધ જીતી જવાનું. 11 દિવસમાં યુદ્ધ જીતી જવાનું છે એવું ઓન પેપર પ્લાનિંગ કર્યા પછી એટેક કરવામાં આવે. અને આ દિવસો ગણવાની કઈ અહીંયા દિવસો જે ગણીએ છે દેટ ઇઝ નોટ ધ વે આર્મી ઓર ડિફેન્સ સર્વિસીસ વર્ક. પ્રોપર પ્લાનિંગ, જગ્યા નક્કી કરવાની છે અને ક્યારે ટાઈમ બી બધું નક્કી કરવાનું છે. ઘણી વખત એની અંદર મહિનાઓ બી નીકળતા હોય છે. જુલાઈ 1971માં જ ઇન્દિરા ગાંધીએ માનેક શાહને જુલાઈમાં એટેક કરવા માટે કહ્યું ને એમણે કહ્યું કે નો વી વિલ બી એટેકિંગ ઇન ડિસેમ્બર ઓનલી. એટલે 6 મહિનાનો ગેપ હતો. કારણ કે આપણે યુદ્ધ શરૂ કરીને એને પૂરું કરવાની બી આપણે તૈયારી હોવી જોઈએ. મોટા ભાગના રિસન્ટલી જેટલા યુદ્ધ થયા છે, જેવી રીતે મકવાણા સાહેબે બી કહ્યું કે યુક્રેન વોર, તો 1 અઠવાડિયામાં પૂરું કરી દેવાની જગ્યાએ આટલા 3 વર્ષ લાગી ગયા છે. ટેક ધ કેસ ઓફ અફઘાનિસ્તાન વોર, 20 years,
વિયેટનામ વોર 20 years તક. એટલે આપણે એવા કોઈ લોંગ યુદ્ધમાં પડવાનું નથી. ડિસિઝિવ વોર. જો પ્રોપર પ્લાનિંગ હશે તો વી વિલ બી એબલ ટુ વિન ધ વોર. આ વખતે અત્યારે આપણો સાયકોલોજીકલ વોર થઈ રહ્યો છે. કે દુશ્મનને સાયકોલોજીકલી એટલો ખોફ લાવી દેવાનો છે, એટલો ડર લાવી દેવાનો છે એની અંદર, કે જ્યારે એમની પર એટેક થાય કે કેટલા બધા ડેવલપમેન્ટ એમની સાઈડમાં. આપણે ત્યાં મિટિંગો થઈ રહીને કન્ક્લુઝન પર આવી રહ્યા છે. એમને ત્યાં 2500 જે સૈનિકો છે એમના કમાન્ડરો છે, એ લોકોએ રિઝાઇન કરી દીધું. ત્યાંના કમાન્ડરો પોતાના ફેમિલીને એબ્રોડ શિફ્ટ કરી રહ્યા છે. વોટ ઇઝ ધ ત્યાંની જનતાની અંદર મેસેજ શું જઈ રહ્યો છે કે કમાન્ડરો પોતાના ફેમિલીને શિફ્ટ કરી રહ્યા છે. ઇટ મીન્સ દે નો દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લૂઝ ધ વોર. ધીસ ઇઝ ધ સાયકોલોજીકલ વોર. એટલે આપણે 3 ફ્રન્ટમાં લડવાનું છે. એક ડિપ્લોમેટિક વોર, જે આપણે ઓલરેડી ચાલુ કરી દીધું છે. 5 સ્ટેપ પહેલા દિવસે આપણે લઈ લીધા છે. ઇકોનોમિકલ વોર, બરાબર છે. પાણી બંધ કરીને એમની પર ઇકોનોમી અને વેપાર બંધ કરીને, એર સ્પેસ બંધ કરીને આપણે ઘણા બધા પગલાં લઈ રહ્યા છે. અને થર્ડ ઇઝ ધ મિલિટરી પાવર. નાઉ મિલિટરી પાવર ઇઝ ધ ફાઇનલ પાવર. અને ફાઇનલ પાવરની અંદર આપણે એવો એટેક કરવાનો છે કે એ લોકો ફરીથી આ વસ્તુ માટે ઊભા ન થઈ શકે. અને એના માટે એ પ્રોપર પ્લાનિંગ જરૂરી છે. આજે તમે જુઓ કે પીઓકેની અંદર આપણે જેટલો સમય વધારે આપી રહ્યા છે, હું મારી તમારા ચેનલના માધ્યમથી લોકોને એટલી રિક્વેસ્ટ છે કે ઇમ્પેશન્સ થવાની જરૂર નથી. ધીરજ અને અધીરાઈ, આ બેની વચ્ચે બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. જી સર. ધીરજથી આપણે જ્યારે કામ કરીએ છીએ તો આપણે સફળતા મેળવી શકીએ છીએ. અને અધીરાઈ આપણને ઇમ્પેશન્સ રોંગ સ્ટેપ લેવડાવી શકે છે. આપણે જેટલો સમય એ લોકોને વધારે આપી રહ્યા છે એટલો આપણે ખોફ વધારે પેદા કરી રહ્યા છે. આપણે બલુચિસ્તાનને જગાડી રહ્યા છે. આપણે આ બાજુ પીઓકેના જે લોકો છે એમણે આર્મીને ખદેડવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. ત્યાં આર્મી પોતાની જાતને સેફ સમજતી નથી. જે લોકો પોતાના દેશમાં પોતાના નાગરિકોને બચાવવા માટે, જે લોકોનું આર્મી પોતે સ્વ બચાવમાં લાગેલું છે, એ દેશને કેવી રીતે બચાવી શકતા? અને લેટ ધીસ મેસેજ ગો સ્ટ્રોંગર એન્ડ સ્ટ્રોંગર ડે બાય ડે. જે દિવસે આપણે જ્યારે એટેક કરીશું ત્યારે એ લોકો કદાચ ઊભા બી નહીં રહે સામે. જે રીતે 93,000 સોલ્જર 13 દિવસની અંદર ત્યાં આગળ હથિયાર ફેંકી દીધા. મોટું યુદ્ધ હતું. 2 ફ્રન્ટ પર આપણે લડતા હતા. ઈસ્ટ પાકિસ્તાન અને વેસ્ટ પાકિસ્તાન 2 ફ્રન્ટ પર આપણી ડિફેન્સ સર્વિસીસ લડતી હતી. અને છતાં પણ ત્યાંના 93,000 સોલ્જરે હથિયાર ફેંકી દેવા પડ્યા. બિગ વોર. જો આપણે એ કરી શકતા હોય તો આપણે આ વખતે એ જ કરવાનું છે કે આ વખતનું ના ઓપરેશન એવા હોવા જોઈએ કે પાકિસ્તાનની સ્થાન ઠેકાણે આવી જાય, એ લોકો આ વસ્તુને ભૂલી ના શકે અને ફરીથી ઊભા ના થઈ શકે એ બી કરવાનું છે. બિલકુલ સર. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે ભાઈ there are sometime it happened કે we have to lose some battles to win the war. યુદ્ધ જીતવું હોય તો નાની લડાઈઓ ઘણી વખત આપણે છે ને લૂઝ બી કરવી પડતી હોય છે. એટલે આપણે અત્યાર સુધી અમને રોપ આપણે કે નાનો એટેક, યુરી એટેક, એર સ્ટ્રાઇક કરીને આપણે અત્યાર સુધી પોતાની જાતને આપણે સેફ કરી શકતા હતા. હવે એક એવો સમય હતો, ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ઓફ વોર, ડિસિઝિવ વોર. અને શોર્ટ ટાઈમની અંદર આપણે મૂકી દેવા, બિકોઝ લોંગ ટાઈમ આપણે કરીશું ને તો નુકસાન આપણને જશે. એક વસ્તુ ડેફિનેટલી છે કે આજના યુદ્ધોમાં નો બડી વિન્સ ધ વોર. ઓનલી થિંગ વોટ હેપન્સ ઇઝ કોઈનું નુકસાન વધારે થાય છે અને કોઈ નુકસાન ઓછું થાય છે, બાકી એવરીબડી લૂઝિસ. આજે યુક્રેન અને રશિયાની વચ્ચે ડુ યુ થિંક દેટ રશિયાને લોસ નથી જઈ રહ્યો? હજારો લાખો એમના સૈનિકો ગવાઈ ગયા છે. કેટલી પ્રોપર. એટલે ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ કરેજ લાઇઝ ઇન એવોઇડિંગ ધ વોર, નોટ ફાઇટિંગ ધ વોર. બટ when war has been imposed upon us, then we have to be very offensive, and that is going to be there this time. યસ સર, એક્ઝેક્ટલી. અને એટલે જ કદાચ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એવી છૂટ આપી છે કે સમય સેનાને કહ્યું કે તમે નક્કી કરો, ટાર્ગેટ તમે નક્કી કરો અને પછી જે કાર્યવાહી કરવી હોય કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર સર, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને વાતચીત કરી. અમૃત સર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અમૃત સર, ગઈકાલે પાકિસ્તાનના એક મંત્રી રાત્રે 1:30 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે અને એવું કહે છે કે હવે ભારત ગમે ત્યારે હુમલો કરી શકે છે. 24 થી 36 કલાકની અંદર હુમલો કરી દેશે ભારત. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આખા મંત્રાલયમાં, આખા પાકિસ્તાનમાં, તમામ નેતાઓમાં બીક ફેલાઈ ગઈ છે કે હવે ભારત જડબાતોડ જવાબ આપશે. आपको इससे पहले भी अगर मालूम होना चाहिए कि हमारी रो एजेंसी इतनी खतरनाक है. हमारे डोभाल साहब पाकिस्तान में जाकर के 6-7 साल अंदर रह कर के सारी सिक्योरिटी, सारी इंटेलिजेंस, उनको वहाँ जो 4 मुख्य प्रांत है, इन चारों प्रांतों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये चारों प्रांतों के बारे में पूरी उनको जानकारी है. उनके बड़े से बड़े उग्रवादियों के जो परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, उनका बेटा है, उनको
वहां से पाकिस्तान में रह करके अगर हमने मार सकते हैं तो यहां से अटैक करके मारने में कितनी देर लगेगी। हमारी इंटेलिजेंस इतनी जोरदार है, इतनी तगड़ी है, किसी भी वक्त हम जो है पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो बॉर्डर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को अगर हम पता करें तो पंजाब से ये जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है 1225 किलोमीटर, और इसके बाद फिर पंजाब में आप आएंगे तो 553 किलोमीटर है, फिर राजस्थान में जाएंगे तो 1053 किलोमीटर के करीब है, और गुजरात में वापस आएंगे तो 508 किलोमीटर, कुल मिला करके 3223 किलोमीटर की लंबी ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, ये उनके बस की बात नहीं है कि सारी बॉर्डर लाइन को वो कवर कर सके, उनके आदमी लगा सकें, उनका मोबिलाइजेशन करें। और एक लड़ाई का नियम होता है कि सबसे पहले सामने वाले दुश्मन को डर से मार दो कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हो या वकील के पास जाते हैं तो आपको कितना डरा देते हैं, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, ये टेस्ट कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो कैंसर हो जाएगा, आपको फलाना हो जाएगा। तो ये जो अभी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया अटैक करेगा, हर एक पॉलिटिकल लीडर के माइंड में घुस चुका है। वहां के जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं उनके दिमाग में घुस चुका है। पूरी रातें 22 अप्रैल के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आर्मी ऑफिसर या जवान जेसीओ कोई 4 घंटा भी कंटिन्यू सोया होगा या 2 घंटा सोया होगा, डर के कारण कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। तो आधा युद्ध तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के द्वारा भी हम कुछ किए बगैर जीत सकते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका का एक कुख्यात उग्रवादी था या वो आदमी था जिसको मारने के लिए अमेरिका ने सोचा कि इनको हम जो साइकोलॉजिकली मारेंगे कि एक कोबरा लेकर के उसको उसका दंश देंगे और वो मर जाएगा। तो उनको पता लग गया था कि कोबरा एक बार थोड़ा सा भी दंश मारेगा, दंश मारते ही उनका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसका प्राण चला जाएगा, प्राण पखेरु। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक ये जो ऑलपिन लिया, ऑलपिन के द्वारा हल्का सा उसको चुभाया और चुभते ही अगले कुछ मिनटों के बाद में वो आदमी की मौत हो जाती है। तो ये क्या है, साइकोलॉजी है इंसान की। साइकोलॉजी एक बार आपके दिमाग में घुस गया, डर आपके दिमाग में फैल गया, तो उस डर की कोई दवाई इस दुनिया के अंदर नहीं है। लोग आज निराशा में, हताशा में और अंडर स्ट्रेस जी रहे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। आपके सामने देख रहे पाकिस्तान के लोग जो है शेल्टर के लिए अमेरिका जा रहे हैं, शेल्टर के लिए वो यूके जा रहे हैं, उनकी फैमिलियों को यहाँ से भेज दिया कि उनके अफसर, आपको पता ही है कि सारे करप्टेड है, पॉलिटिकल आज जो भी उनका चल रहा है सारा उनका ही आर्मी ऑफिसर्स का चल रहा है। तो जो भी प्रोजेक्ट होगा उनके अंदर उनकी कट होगा, इसके अलावा चलता ही नहीं। इससे पहले भी कई बार मार्शल लॉ हो चुका है, आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो परवेज मुशर्रफ इतना साल मार्शल लॉ चला है, इससे पहले अयूब खान ने चलाया। तो ये जो है पाकिस्तान के अंदर आम बात है। पिछले इतने सालों से आपने देखा होगा उनकी राजनीतिक जो क्या बोलते हैं राजनीति, उनका 5 साल कोई प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर पाया है। 5 साल कंटिन्यू या तो वो जेल में होगा या तो देश छोड़ करके भाग गया होगा। जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहां कोई डिसीजन लेने का पावर किसी के हाथ में नहीं है, अगर है तो भी वो डर डर के वो पावर ले रहा है। दूसरा, इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी खराब है, दुनिया का कोई देश उसको हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इवन चाइना भी उसको पकड़ने का तैयार नहीं है, जो अरबों डॉलर का व्यापार उनके साथ किया। सिपेक जो वहां से निकल करके वो चाइना तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हालात अगर इस पाकिस्तान का भारत ने कर दिया, अभी तो हमने अटैक किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिपरेशन चल रही है। और अभी जो ये 2 लगातार 3 मीटिंग हुई, एक सीसीएस की जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स, ये तीनों जो मीटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ये दूसरी जो मीटिंग है CCPA की जो मीटिंग है, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरी बार होने जा रही है।
कि भाई अगर कोई लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट आगे देखा जाता है। लड़ाई का कोई भरोसा नहीं, 1 दिन चले, 2 दिन चले, 1 हफ्ता चले, 5 महीना चले, 6 महीना चले, साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, 15-20 साल, तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा हमारा इकोनॉमी पर, हमारे डेवलपमेंट पर क्या इसकी इफेक्ट आएगी। पहले तो हमारे आर्मी कमांडरों के द्वारा पहली बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में कोई आर्मी कमांडर नहीं है, वो कोर कमांडर के थ्रू ही पूरी कार्रवाई करते हैं। हमारे भारत के अंदर हमारी भारतीय सेना में कोर कमांडर होते, इसके ऊपर आर्मी कमांडर होते कमांड वाइज। जैसे भारत की 7 कमांड में उसको बांटा गया है। पहली कमांड है ईस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड, साउदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ट्रेनिंग कमांड। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कमांड है उसके ऊपर एक हमारा जो आर्मी कमांडर होता है, उस प्रकार वहां पाकिस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ये तीनों सेनाएं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, सुचारू रूप से तीनों सेनाएं आराम से लड़ सके, उनके लिए उसके ऊपर सीडीएस को बिठाया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऐसा पाकिस्तान में कोई सुविधा नहीं। तो आज जब उसकी सेना में ही तालमेल नहीं है, नेवी को क्या आदेश देंगे, एयरफोर्स को क्या आदेश देंगे, आर्मी कैसे लड़ेगी, वैसे ही आज उनकी सेना का मनोबल इतना गिर चुका है कि कोई आज की से डेट नहीं में है, वो तो बलूचिस्तान पहले में से ही, नौकरी क्योंकि करने के आपको लिए ज्यादा तैयार मालूम हुआ सर, वो पहले से ही उनकी यही हालत है। वो चाहे पिछले युद्ध हो या अभी की बात हो, क्योंकि सेना के प्रमुख है वो भी बौखला गए हैं, जो नेता है वो बौखला गए हैं। जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो हमने लिए हैं, हमने जैसे पानी बंद करने का निर्णय लिया, तो वो बोल रहे हैं कि पानी बंद करोगे तो हम खून बहाएंगे। इसलिए वहाँ का हर नेता बौखलाया हुआ है। सर मुझे ये भी जानना है कि अब अगर जो स्टेप्स सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा लिए जा सकते हैं, वो स्टेप्स सर्जिकल स्ट्राइक के जैसे होंगे, मतलब कि जब हो जाएगा उसके बाद लोगों को पता चलेगा, या पहले से ही अटैक हो जाएगा और वो बोल के किया जाएगा? देखो अभी के स्टेप जो है मेरे अनुभव के मुताबिक, मैंने आर्मी में 33 इयर्स 6 मंथ एंड 5 डेज सर्विस किया है। जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली मेरा जो अनुभव रहा है वो कुपवाड़ा पिक मिलिटेंसी 2 साल, जो 2 साल के दौरान जो मैंने वहाँ नौकरी किया है, छुट्टी छोड़ करके हमने रात के सोते समय कभी जूते नहीं खोले। खाना खाने के लिए भी जब भी ऑफिसर मेस में जाते थे तो AK-47 के साथ हम खाना खाने के लिए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी सिचुएशन में हमने अपना समय वहाँ पे व्यतीत किया। जब हमारी पोस्टिंग रजौरी में थी तब कारगिल की लड़ाई लग गई, तो 99 में हम लोग कारगिल के साथ पूरी लड़ाई लड़े और सुचारू रूप से उसमें विजय प्राप्त किया। हमारे कई जवानों ने शहादत दी, लेकिन फिर भी हमने उसमें विजय प्राप्त किया। तो जिस प्रकार से जो मेरा अनुभव कहता है कि अभी जो है बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो खाली CCS की मीटिंग बुलाई थी, पुलवामा अटैक में एयर स्ट्राइक करनी थी तो CCPA की मीटिंग बुलाई थी। अभी ये तीनों मीटिंगों को बुलाया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स, कि भाई इसमें इकोनॉमी के अंदर भी जो बजट हमने डिफेंस के लिए दिया, हो सकता है इससे ज्यादा बजट देने की जरूरत पड़ जाए। अब जब बजट की बात आ रही है तो आने वाले समय में अगर हमारे 2 फ्रंट वॉर अगर लड़ना है तो मुझे 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए। आज हमारे पास वैसे ये डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो है हमने इस कैबिनेट कमेटी के अंदर एक मुद्दा लिया था कि हमें भारत के अंदर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की आवश्यकता है। कि अभी हमने जो फ्रांस से जो फाइटर खरीदे हैं, 36 फाइटर तो पहले ही आ गए हैं, अभी 26 और लिए हैं, जो उस फाइटर नेवी के लिए स्पेशली है, फोल्डेबल वर्जन वाले जो है मरीन फाइटर हो जाएगी और आराम से उसको कैरियर के अंदर मरीन फाइटर्स हैं। यस M। तो उसके अलावा वो 4.5 जनरेशन वाले हैं, और अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो है M का है एडवांस, ये एडवांस जो क्या बोलते हैं मीडियम एयरक्राफ्ट है,
सो ये एयरक्राफ्ट है अमेरिका से हमने स्पेशल जो इंजन है वो अमेरिका की एक कंपनी है GE 401 जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन लगा हुआ उसके अंदर। वो इंजन जो है 100 घंटे तक कंटिन्यू हवा में चल सकता है, इतना पावरफुल इंजन है। तो वो इंजन जो है ये एमका हमारा जो प्लान है ये स्वदेशी प्लान, इस प्लान को चलाने के लिए हमारी 2 एजेंसीज काम कर रही, स्वदेशी कंपनी, एक है ADA और दूसरा HL। ADA क्या है? एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी है और HL है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो ये एमका प्लांट के अंदर हम स्वदेशी जो तेजस मार्क 1 वो हम बनाने जा रहे हैं। और उसमें इंजन कौन सा होगा? जो GE इंजन है जो अमेरिका से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। भी आपने देखा होगा मार्च एंड तक एक एमका का इंजन हमारे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये सारे जो इंजन है इस तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर होगा। और उसकी जो क्षमता है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दुनिया का ऐसा जो जहाज होगा, लाइट जहाज, लाइट वेट, और उस लाइट वेट जहाज के अंदर लो फ्लाइंग कर सकेगा और ऊपर जो 50,000 फीट तक ऊपर जाकर के फ्लाई कर सकता है, ताकि वो रडार में ना आए। इतनी जो रडार सिस्टम है स्टिल है कि रडार के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा जी। तो ऐसे जहाज हमारी से वायुसेना के अंदर 2035 तक सारे जहाज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरा बन करके भारत में ही आ जाएगा। और दूसरा साथ ही साथ ये 15,000 करोड़ का अप्रूवल हमारी CCS ने उनको दे चुका है। और दूसरा जो है मार्क 3 हेलीकॉप्टर जो हम 34 खरीद रहे हैं, ये भी हमारी जो HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसको बना रही है। इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ध्रुव मार्क 3। जो हेलीकॉप्टर है वो अटैक हेलीकॉप्टर है और वो 34 में से हमारी सेना के पास 25 रहेंगे और 9 जो है तट रक्षक को दिया जाएगा जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये भी 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार से सेना को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे अति आधुनिक से आधुनिक हथियार हम चाहे वो अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाहे रशिया से खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सेना को, तीनों सेनाओं को, नॉट ओनली ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे भी रशिया के साथ हमने 10 लाख राइफल का सौदा किया AK-203 जो कि आगे लखनऊ के आगे जो एक स्थान है जहां पर उनका पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। लेकिन दिक्कत ये है फिर भी जो पाकिस्तान है वो समझ नहीं रहा है। हमारा जो रक्षा बजट है, सिर्फ रक्षा बजट, वो पाकिस्तान के पूरे बजट से भी ज्यादा है। और अभी ऐसी स्थिति में तो हम अपने एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे हैं, अब शिप हम बढ़ा रहे हैं, नेवी कह रही है कि हम तैयार है, फिर भी पाकिस्तान को ये समझ नहीं है और ऐसे आतंकवादी हमले कर रहा है। सर देखो, आदमी जब आखिरी घड़ी में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आज उसके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी डाला जा रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू उसको ग्रे लिस्ट में लाया जाए। हमारा विपक्ष का एक नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भारत सरकार से विनती करी, निवेदन किया कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर ला जा करके, उसके लिए जरूरी क्या है कि टेररिज्म के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आप सभी ने देखा होगा कि अभी उनकी आर्मी का, यानी कि जो पेरा SF होती है, स्पेशल फोर्स, जो हवाई जहाज से ऊपर से डाउन होकर के नीचे उतरता है दुश्मन के एरिया में जाकर के, स्पेशल फोर्स, और उनकी ट्रेनिंग, तगड़ी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा एक जवान जिसका नाम मूसा है, वो मूसा आइडेंटिफाई हुआ है गुप्त संवाददाताओं के द्वारा, और ये समाचार आया है कि पाकिस्तानी सेना ये कायराना हमला करने के लिए इन्वॉल्व थी और वो आदमी का स्केच भी जारी हो गया, नाम भी जारी हो गया। तो वो आदमी पाकिस्तानी सेना का ही मूसा करके जो था, जो पेरा SF उनका एक जाबाज सोल्जर था, जिन्होंने इतने लोगों के साथ धर्म पूछ करके निर्दोष लोगों की हत्या करी। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रूफ है और इस प्रूफ के द्वारा हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी जा करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, जिससे कि दुनिया की वर्ल्ड बैंक को छोड़कर के कोई भी बैंक उसको 1 रुपये का लोन नहीं देगा। तो ये सारी तरफ से, नॉट ओनली दिस, पूरी
वर्ल्ड की इकोनॉमी को पॉलिटिकली भी अभी आपको मैंने बताया कि सर्वदलीय बैठक करके सारे लोगों का हमने समर्थन ले लिया, इंटरनेशनल से भी सारे लोगों का समर्थन ले लिया। तो अभी इंडिया चाहता है, और दूसरा कड़े से कड़े स्टेप लिए, जिसमें सिंधु नदी का निष्कासन, आज जो उनका पानी रोक करके तीनों नदियां जो झेलम है, चिनाब है, और उनकी जो तीनों नदियों का पानी, चिनाब का पानी रोक दिया, सिंधु का पानी रोक दिया। तो ये एक दर्शाता है कि उससे उनकी जो हालत है, और अभी भी थोड़े दिन पहले ही ये सैटेलाइट से फोटोग्राफ जो जारी हुए, तो आज उनकी हालत आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल के बाद में आप देखिए सीसीएस की मीटिंग होती है और तुरंत उसका पानी बंद कर दिया जाता है। तो क्या हालत होगी, उनकी सिंचाई कैसे चलेगी, उनको पीने का पानी कैसे मिलेगा, उनको औद्योगिक जो है कितनी असर होगी उनके ऊपर। और साथ ही साथ आप देखिए, इसके अलावा हमने उनके उच्चायुक्त को यहाँ से उनकी संख्या को 55 से 30 कर दिया, और यहाँ भारत से उसको 1 मई तक का टाइम दिया कि भारत छोड़ करके आप चले जाएंगे। उनकी जो वीजा है, सार्क वीजा एंड स्पेस वीजा, दोनों वीजा धारकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया कि इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा जाता है तो 3 साल की उनको कैद हो सकती है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब सर ये बात भी स्पष्ट है कि दुश्मन को सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं मारना है, साइकोलॉजिकल मारना है, इकोनॉमिकल भी मारना है, और डिप्लोमेटिकली भी अब आए आप जो दुश्मन है उसको खत्म करना है। कोई भी एक फ्रंट बाकी नहीं रहना चाहिए दुश्मन को खत्म करने के लिए। बेसिकली सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पॉलिसी है ये मोदी जी ने डे 1 से ले रखी कि किसी भी देश को खोखला करना है। अभी आप जिस प्रकार से बांग्लादेश ने हमारे पर इतना परेशान करने की कोशिश किया, हमारे हिंदुओं पर इतना अटैक हुआ, इसके बाद हमारे जो चिकन नेक कॉरिडोर है जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य है, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, तो ये जो राज्य हैं ये एक साथ इनके साथ कनेक्टेड है। और चिकन नेक कॉरिडोर वो एक ऐसा भाग है जो कि 22 किलोमीटर का एक चौड़ा हिस्सा है कि इसको अगर कटअप कर दिया जाता है, और इसके ऊपर साथ ही साथ आप देखें तो ट्राई नेशन की एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं भूटान, इंडिया एंड चाइना। आप लोगों ने ये 76 डेज का एक स्टैंड ऑफ भी देखा होगा, डोकलाम 76 डेज तक वहां पे बना रहा। तो उसमें हमारा प्लस पॉइंट यही है कि अगर हम चाहें तो कल बांग्लादेश पर अटैक करके उनका रंगपुर जो कि वहां से एकदम पास में उसको कब्जा कर लेते तो चिकन नेक हमारा कॉरिडोर खत्म हो जाता। वहां कोई भी आए पूरा रास्ता बना लो। दूसरा रास्ता एज इट इज, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एज इट इज जो हमारा म्यांमार है उनके साथ अच्छे संबंध है, उनका सितवे पोर्ट है, तो कलकत्ता से सितवे पोर्ट तक, और इसके बाद वहां से कालानाग वहां बांध बना करके सारा तैयार कर चुका है कि कल को अगर चिकन नेक कॉरिडोर पर ये लोग कटअप करने की कोशिश करते हैं तो हम कलकत्ता से हमारा जो सप्लाई चेन है वो सीधा सितवे पोर्ट होते हुए, सितवे पोर्ट से कालानाग इसका जो रिवर है, रिवर पर बांध बनाया जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में सारा रसद, और आज की डेट में 2.5 से 3 लाख की हमारी आर्मी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बैठी है कि कल को अगर 2 फ्रंट खुल जाता है, चाइना ने हमारे पर अटैक कर दिया, तो हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ बांग्लादेश का मुंह बंद करने के लिए आपने देखा होगा कि देश भर में जितने भी इल्लीगल अवैध बांग्लादेशी कई सालों से भारत में रह रहे थे हमारी सेफ पर, तो उनको सबको पकड़ पकड़ करके डिपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो अहमदाबाद में हुई है सर, भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो अहमदाबाद में हुई है, जो लेक है चंडोला, 1000 लोगों, चंडोला करके एक प्लेस है, चंडोला प्लेस में सारी 1 लाख एकड़ जमीन को उनके कब्जे से मुक्त कराया गया। तो ये एक बहुत सबसे बड़ा एक्शन है, और उसका सारा श्रेय जो है गुजरात के गृह मंत्री श्रीमान हर्ष संघवी को जाता है कि उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया और जगह जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में आदेश पास किया, पुलिस को अलर्ट किया
जिसके कारण इतना बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिल पा रहा है। जी, नॉट ओनली हियर, यहाँ बड़ौदा में भी इतने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, अहमदाबाद में भी डिटेंशन सेंटर बनाए हैं और बाकी जगह भी सेम कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा कचरा जो है साफ होकर के निकल जाएगा तो बांग्लादेश की शान भी ठिकाने पे आ जाएगी कि हम हिंदुओं पर जो अन्याय तरीके से उन पर जो हम अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो गलत बात है। वो हमारे देश की सभ्यता है। हमारे देश को आज़ाद कराने वाला अगर कोई है तो भारत है। हमारे देश को नया जन्म देने वाला कोई है तो ये भारत है। लेकिन ये जो चंद पिट्ठू हैं, जो यूं कहा जाए कि ये डीप स्टेट के पिट्ठू हैं, जो वहाँ से करोड़ों रुपये की लागत अपने पर लेकर के आज जो है अपने देश को एक खाई में धकेल दिया और वहाँ की जो प्रधानमंत्री को बॉयकॉट करके उनका घर को जलाया, उनको इतना नुकसान किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, कोई भी आदमी अगर कोई गलत काम करेगा, किसी के सहारे गलत काम करेगा, आज जो भी पता है कि चाइना के प्रभाव में आ गया, कोई शराबी है, शराबी में रोज दारू पिए, उसके साथ कोई बंदा बैठेगा तो उसको भी दारू पीने की आदत लग जाएगी। बिल्कुल तो उसी प्रकार से अगर आप किसी भी डीप स्टेट यानी कि चाइना ने अपने कब्जे में जो भी उनके अंडर में गया उनको अपना गुलाम बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सेम बांग्लादेश के साथ ही यही कार्रवाई करी उन्होंने और श्रीलंका के साथ कार्रवाई, श्रीलंका को भी डुबो दिया, नेपाल को भी डुबोने की कोशिश करा, भूटान को। बट हमारा भारत देश ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा के लिए जो विश्व ये ना वसुदेव कुटुंबम की भावना से पूरी दुनिया को एक परिवार मान करके चलते हैं। आज देखिए आप, तुर्की के अंदर इतना बड़ा भारी भूकंप आया था, भारत पहला देश है जो पूरी मेडिकल टीम, पूरी दवाइयाँ, पूरा रसद लेकर के पहुंची थी। फिर भी उस देश ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान ने क्या किया, जब यहाँ बाढ़ आई थी और जो रसद उन्हें तुर्की ने भेजा था वो उसका लेबल चेंज करके वहां पकड़ा के आ गए। और उस चीज में जब एक तरफ आपका भूकंप आया है, वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये जो शरीफ है वो वहां जाकर के पहुंचता है। वो शरीफ नहीं है सर। उस घड़ी में कोई विजिट करने जाएगा किसी देश की? इनको शर्म नहीं है, इन कंट्री वालों को मैं बता रहा हूं जी। इनको इतना ही है बस, दुनिया के 57 देश है, 57 देश में पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो हम क्या खाली बैठे? एक एक मंत्री उनका बार बार आकर के आप उनके वो मंत्री कह रहे हैं कि 130 न्यूक्लियर वेपन्स है उनके पास और अगर कुछ हुआ तो ऐसे ही नहीं रखे हैं, वो भारत के लिए रखे हैं। ऐसे वो खुले में बोल रहे हैं। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या उसके हाथ में ही है सारी चीजें? उसके पास वो सिर्फ बोलते ही है सर और कुछ नहीं करते। आपके वो सिर्फ बोलते ही करना। अगर उसको चलाना ही था तो जब हमने अटैक किया था, पुलवामा अटैक किया हमने, उड़ी अटैक में क्यों उस समय नहीं चलाया? क्यों कारगिल युद्ध में नहीं चलाया? क्यों 65 के युद्ध में नहीं चलाया? दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि आज दुनिया के अंदर टोटल 9601 परमाणु शस्त्र हैं और दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास ये परमाणु शस्त्र हैं। सबसे पहला नीचे क्रम में मैं आऊंगा तो नॉर्थ कोरिया है जिसके पास 50 परमाणु बम है। दूसरे क्रम में आऊंगा तो इजराइल जिसके पास 90 परमाणु बम है। तीसरे क्रम में मैं अगर आऊंगा तो पाकिस्तान के पास जो है 170 परमाणु बम है। चौथे क्रम में आऊंगा तो भारत जिसके पास 180 परमाणु बम है। पांचवें क्रम में ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। छठे क्रम में आऊंगा फ्रांस 290 परमाणु बम है। सातवें क्रम में अगर मैं आऊंगा तो चाइना के पास 600 परमाणु बम। और आठवें क्रम में अगर आऊंगा तो अमेरिका के पास 3700 परमाणु बम है। और सबसे ज्यादा रशिया के पास 4299 परमाणु बम है। ये कुल मिलाकर के 9601 और अनऑफिशियली 12331 परमाणु बम है। लेकिन रशिया ने भी इस्तेमाल नहीं किया। 3 साल से लड़ाई चल रही, वो चाहता दुनिया का बादशाह है, सबसे ज्यादा परमाणु बम रखा है। उसने तो कभी धमकी नहीं दिया कि मैं परमाणु बम
परमाणु बम सब पूरी दुनिया को मालूम है। अमेरिका जी ने जब हिरोशिमा नागासाकी 1945 में गिराया था तो उसका नाश कितना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सर उसी हमारे के लिए पास तो बेसिकली जो ट्रीटी की परमाणु जाती है, बम उसी की के लिए क्षमता ट्रीटी की जाती है कि परमाणु अटैक जी, नहीं जी। होगा, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के लोग अनपढ़ है, उनके मंत्री अनपढ़ है, उनको मालूम नहीं है कि ऐसे बोलने से हमला नहीं हो जाता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। थोड़ा टाइम का अभाव है इसलिए। तो અત્યારે સ્થિતિ એવી છે કે બેઠકોનો દોર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બેઠક કરી રહ્યા છે, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ઉપસ્થિત છે, રાજનાથ સિંહ ઉપસ્થિત હતા। 20 મિનિટ બેઠક ચાલી, આજે બીજા દિવસે આ બેઠક હતી। એટલે એક વાત નક્કી છે કે નજીકના સમયમાં સરકાર ખૂબ મોટું એક્શન લેવા જઈ રહી છે। આ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। નમસ્કાર।